हाँ, सभी बच्चे आज ये देखेंगे कि इस वीडियो में एक रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली एंड बीबी पैरासिट। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स लैंगिक जनन करने वाला और ये बीबी पैरस होते हैं, अर्थात ये बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन इनकी जो एक प्रक्रिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है कंप्लीट इन दीज हेडिंग्स लाइक गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, implantation, gestation and parturition. These are the steps which takes part in completion of human reproduction. ये सभी जो इवेंट्स हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने में ये अपना अलग अलग एक घटना है। For example, gametogenesis. Gametogenesis means the production of male and female gametes from testis and ovary. Gametogenesis means formation of gametes, male or female. Male gametes are known as sperm and female gametes are known as ovum. These events are known as gametogenesis. Next, insemination. In the process of insemination, transfer of male gametes or sperm into the female genital tract. This is known as insemination. इसका अर्थ यह है कि सीमेन का फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में रिसीस करना, वहां ट्रांसफर करना, ये इंसेमिनेशन। नेक्स्ट, fertilization. In the fertilization, you known very well about fertilization that fusion of male and female gamete in the uterus of female, that is known as fertilization. मेल और फीमेल गैमेट का यूट्रस के अंदर उनके ओविडक्ट में फ्यूज करना, आपस में मिलना, ये फर्टिलाइजेशन है। एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर फॉर्म ए 2x cell known as zygote. You can say zygote is the result of fertilization, result of the fusion of male and female gametes. You know, zygote formation takes place when male and female are fused together. नेक्स्ट इवेंट्स है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस आफ्टर fertilization
It means zygote in the stage of blastocyst. You can say after 1 week from fertilization, the stage known as blastocyst. This blastocyst attached to the uterine wall. Attachment of the blastocyst to the uterine wall is known as implantation. इसका मतलब यह है कि जाइगोट जब बन गया तो जाइगोट लगभग 1 वीक तक वह ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, और डेवलप के बाद उसमें एक अवस्था आती है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ द जाइगोट अटैच टू द यूटेरिन वॉल, और वो यूटेरिन वॉल से अटैच हो, और दिस प्रोसेस नोन एज इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट, गेस्टेशन. गेस्टेशन इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. Gestation mechanism takes place complete in nearly 9 months within the uterus of female. ये जो गेस्टेशन की क्रिया है, जो डेवलपमेंट की क्रिया है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वह 9 मंथ तक फीमेल के यूट्रस में कंप्लीट होता है. तो ये सारा डेवलपमेंट इज नोन एज गेस्टेशन. गेस्टेशन बिलोंग्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द यूट्रस. नेक्स्ट, पार्ट्यूशन. पार्ट्यूशन, ये जो पार्ट्यूशन है, partition means delivery of the baby, delivery of the newborn from the female. Partition process deals with the delivery of the newborn. As you can say, on the basis of newborn delivery, दिस इज नोन एज बेबी पेरेंट्स. जो 9 मंथ तक एम्ब्रियो डेवलप करके एक न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है, और वो बेबी फिर वो कम्स आउट फ्रॉम द फीमेल, वो फिर बाहर आता है. तो बाहर आने की क्रिया जो है, ये डिलीवरी है, इज नोन एज पार्ट्यूशन. दिस इज पार्ट्यूशन. तो इस प्रकार से इन दिस वे we know about the whole process of human reproduction in these events. Now we are going to discuss only parts of male reproductive system. What is male reproductive system? On the basis of male reproductive system presenting separate individual, that individual are known as man, and that individual have female reproductive system are known as women. The man and woman are two individuals which takes part in the process of reproduction. So first of all, we discuss about male reproductive system, and male reproductive system consists of following step. The first one testis, second one accessory organ, and third one external genitalia, and fourth one glands. These are present in male reproductive system. First one, testis.
देखिए, टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ये पुरुष का ये नर जनन अंग होता है, टेस्टिस। टेस्टिस ये संख्या में 2 होते हैं एंड टेस्टिस आर सिचुएटेड out of the abdomen and also in a bag like structure known as scrotum. Testis situated outside of the body, outside of the abdomen, from which the temperature of the testis 2 to 2.5 degree centigrade less than the temperature of internal body. टेस्टिस शरीर से बाहर होता है, स्क्रोटल सैक में होता है और इस टेस्टिस के बाहर होने से इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस दैन द टेम्परेचर ऑफ इंटरनल बॉडी। ये इंटरनल बॉडी की तुलना में इसका टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉट occur in body temperature, that is 37 degrees Celsius. Spermatogenesis events complete in human beings within the testis nearly 34.5 degrees Celsius, which is 2 to 2.5 degrees Celsius less than the internal body. Each testis contain 250 compartment। टेस्टिस के अंदर 250 तक कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ये 250 तक पिंडक पाए जाते हैं एंड ईच कंपार्टमेंट कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं इन द टेस्टिस। These seminiferous tubule underlined by germ cell, that is spermatogonia, and Sertoli cell. 2 types of cells present in seminiferous tubule, that is spermatogonia and Sertoli cell. Spermatogonia during meiosis division produces sperm and Sertoli cells provide nutrition for the sperm. Outside of the seminiferous tubule has a space, and this space is known as interstitial space. Interstitial space also contain interstitial cell और Leydig cell। जैसे ये अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो इनके बीच में ये क्या है, स्पेस।
This space is known as interstitial space, and this space contains a hormone secreting cell that is known as interstitial cell. Interstitial cell. This cell is also known as Leydig cell. Interstitial cell or Leydig cell, both are same, and they produce hormones. After spermatogenesis, sperm in the beginning stage it is known as spermatid. स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना एक अलग से बताएंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना क्या है। उसमें जो ये क्रियाएं होती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटिड से फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है, जिस क्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये स्पर्म सर्टोली सेल से एम्बेडेड होकर ये न्यूट्रिशन गेट करते हैं, और दिस प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन। तो दीज आर द इवेंट्स कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। हियर you know only the structural point of view of testis, which described, that is the Leydig cells provides hormones, that is androgen, and Leydig cell is stimulated by the GnRH secreted by hypothalamus. हाइपोथैलेमस से एक GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है एट द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज 11 to 13 ईयर्स एज। 11 से 13 वर्ष की आयु में हाइपोथैलेमस से GnRH नामक एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलते हैं। यू कैन से लुटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। Luteinizing hormone stimulate the Leydig cell, and this Leydig cell secrete androgen. Androgen also induces the process of spermatogenesis, process the growth of secondary characteristics in the human beings। तो इस प्रकार से ये टेस्टिस कि जो ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू रहा आपने जाना। नेक्स्ट इवेंट्स है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन आल्सो स्टडीड इन 4 स्टेप्स: रीटी टेस्टिस, वास इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ऑल द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल opens in vas efferentia through latis testis, and all vas efferentia enters into epididymis, and epididymis opens into single vas deferens, and vas deferens upwardly reaches over urinary bladder, loops
and also receive a duct of seminal vesicle, it becomes ejaculatory duct, and ejaculatory duct also open into urethra of the penis, and urethra ultimately opens outside by urethral orifice. देखिए, ये जितने भी वास डिफरेंस होते हैं सेमिनल वेसाइकिल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं, उनकी पतली पतली शाखाएं वास डिफरेंसिया कहलाती हैं। ये रीटी टेस्टिस से होते हुए ये पहुंच जाते हैं इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस से केवल एक वास डिफरेंस निकलता है जो ऊपर की ओर पेल्विक अब्डामन में प्रवेश करके फिर लूप बना करके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, और एक डक्ट उसमें आकर खुलती है सेमिनल वेसाइकिल से, वो डक्ट मिल करके ये इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर ये सीमेन को, स्पर्म को ये अपना यूरेथ्रा के द्वारा ये आउट करता है, बाहर करता है। इस प्रकार ये एसेसरी आर्गन आपके फिगर में देखिए स्पष्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी के फिगर में आप देखिए, उसमें ये पूरा जो है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है, और उसमें ये पूरे जो है लूप को दिखाया है, वास डिफरेंस किस प्रकार से ऊपर जा रहा है और कैसे कैसे वो आ रहा है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। जो नेक्स्ट स्टेप है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया is known as penis of the human, male human, and it consists of a specialized muscles which help in the erection of penis, which is necessary for the transfer of semen into the vaginal tract of the female. Its last end is known as glans and covered with foreskin. Next, glands. Glands of male reproductive system are mostly three. First one, prostate. Second, seminal vesicle, and third, bulbourethra. These glands combinedly secrete a fluid which is rich in fructose, calcium, and some enzymes. ये तीनों प्रकार के जो ग्लैंड्स हैं वो आपस में संयुक्त रूप से एक फ्लूइड का स्राव करते हैं जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं, और दिस फ्लूइड आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पर्म. At last, bulbourethra secretes some lubricating fluid. In this way, we describe in details what is human reproduction and structurally all the parts of male reproductive system. Thank you. धन्यवाद.
और योगेंद्र जी और बताइए, हाल चाल से बढ़िया है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ अरे तो ये मतलब यह कहे कि यहाँ काम हुई और जगह न काम हुई। पटेल जी के बगल में बैठे काम हो सका ना, आप तो जानते हैं। पटेल is the most favorite teacher of the college and also कह लीजिए कि preferred by the head of the college। आप ऐसे टीचर को कह रहे हैं? पटेल जो है भाई इतना प्रसिद्ध और फेवरेट और प्रेफर्ड टीचर हैं कॉलेज के कि छुट्टी में आकर के एमडीएम बंटवाते थे। अब वो टीचर का तू शिकायत कर रहा है तो उनके बगल में भैया काम न हुई, वो बल्कि जो एक लाइन बोल रही है वो साहब मान ली। नटवा जनपन पूरा